اور یہ مختلف دوستوں کے بھجوائے ہوئے سوالات میں سے پہلا ہے. ایک دوست لکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مختلف رفاہی تنظیمیں اس غرض سے رقوم جمع کر رہی ہیں کہ یہ رقم ان غریب لوگوں کو دی جا سکے جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس طریق پر غریبوں کی مدد کرنے کو قربانی کا بدل قرار دیا جا سکتا ہے؟ غریب کی مدد تو ایک جاری حکم ہے. اس کے لیے قربانی کا انتظار کر کے اسی پیسے کو ڈائیورٹ کرنا تو ایک محض بہانہ ہے نفس کا. غریب کی خدمت ایک جاری ساری صبح شام روزانہ درپیش آنے والا مسئلہ ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اسی لیے ایک جاری دیا کی طرح بیان فرمایا. مما رزقناہم ينفقون میں جو جاری مضمون ہے وہ یہ ہے. یہ جو قربانی ہے یہ ایک سمبل ہے، ایک خاص نشان، ایک ایسی یاد میں جس میں ایک عظیم نبی نے اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ کو خدا کے لیے قربان کیا. اس سمبل کو بہانہ بنا کر غربا کی طرف ڈائیورٹ کریں اور اس نشان کو بھول جائیں جو قربانی کو یاد دلانے والا ہے. یہ گلے سے اتار پھینکنے والی بات ہے، اور جس محبت کے ساتھ شوق سے یہ قربانی دینی چاہیے اس مضمون کی نفی ہوتی ہے اس سے جو یہ پیش کر رہے ہیں. خالی مانگنے والے مانگتے رہیں، ان کا منہ پیٹ بھی بھر دیں آپ کھالوں سے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گروہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی تنظیمی طاقت بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. جماعت اسلامی لوگوں کی کھالوں پر پلی ہے اور بہت زیادہ اس نے اہتمام کے ساتھ کھالیں اکٹھی کر کے تو اپنی جو عسکری قوت ہے وہ بڑھائی ہے، اور یہ غریب کی خدمت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نظام جماعت میں جس طرح کھالوں کا اکٹھا کر کے صدقات پر خرچ کرنے کے نظام میں وہی جائز ایک طریقہ ہے. جو گوشت ہے وہ اس طرح تقسیم ہونا چاہیے کہ جیسا کہ سنت سے ثابت ہے، گھر کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، عزیزوں کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، اور غربا کے لیے ایک حصہ الگ ہو جانا چاہیے. چنانچہ پاکستان میں غربا میں خصوصیت کے ساتھ یہ انتظام ہے، اور پاکستان میں جماعت احمدیہ میں ہر جگہ یہ ایک جاری ہے کہ عام طور پر لوگ 1/3 یا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ایک حصہ نظام جماعت کے ذریعے تقسیم کرانے کے لیے 1/3، اور ایک حصہ اپنے تعلق والے نسبتاً غریب لوگوں کو خود مہیا کر دیتے ہیں. تو ایک بڑا مختصر طریقہ ہے. 1/3 کی شرط ضروری نہیں کہ اسی طرح تقسیم ہو، مگر حسب توفیق ہر شخص کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ آپ تقسیم کے لیے رکھے، کچھ جماعت کے نظام کے ذریعے تقسیم کرائے، اور کھانے کے بہرحال غربا کی خدمت کے لیے خرچ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. قربانی کی گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں نا، ایک اپنا، ایک رشتے داروں کا اور ایک غریبوں کا. اگر ہم اس میں قربانی کریں جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے تو اس کا اس ملک میں قربانی کرے اور تمہیں کوئی غریب نہ ملے تو پھر آپ ہی کھا جاؤ، اور کیا ہو سکتا ہے. رشتے داروں کو دے دو. دیکھو ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں تمہاری طرح کے، ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو ذرا کمزور ہوتے ہیں. بہت سارے یہاں لوگ ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے، اسائلم سیکر ہیں. پھر بہت سارے لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو ڈسٹ بن سے اٹھا کے گند کھاتے ہیں، جو اتنی غریب نہیں ہوتے اس ملک میں. ان کو تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. کئی ایک تو ہے نا نشے والے لوگ، شرابوں میں نشہ کر کے اور دوسری ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. بیچارے کئی لاکھ آدمی تو ڈسٹ بن سے دیکھ کے لفافے کھول کھول کے کھا رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بعض جگہ ایسے لوگ ہیں جو جہاں جن کو غریب کو تلاش کرنا چاہو تو مل بھی جاتے ہیں. امریکہ میں تو افریقن جو آبادیاں ان میں سے کئی
हजार बल्कि लाखों में ऐसे हैं जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। वैसे तो अमेरिका बड़ा एडवांस मुल्क है, तो वहाँ जाके भी उनको दिए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अनम नासिर है। मेरे अब्बू का नाम नासिर अहमद है। मेरी अम्मी का नाम रिफ़त नासिर है। मैं पहलम जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है, क्या हम अपने फौत हुए बुजुर्गों के नाम की कुर्बानी कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें कुर्बानी से मुराद है वो जो अभी ईद उल अज़हा के मौके पे जो जानवर की कुर्बानी वगैरह, वो कुर्बानी कह रहे हैं, वो तो और बात है। ये माली कुर्बानी कह रहे थे, समझा था मैं। नहीं ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनको कोई फिक्र नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की एक कुर्बानी करते हुए फरमाया था कि मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी आइंदा उम्मत की तरफ से है। तो गरीबों को तो खुश हो जाना चाहिए कि उनकी कुर्बानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। वसल्लम की क्या सुन्नत थी? ईद कुर्बानी की ईद है ना, ईद उल अज़हा कहते हैं, उसमें सुन्नत यही है कि पहले ईद पढ़ो और नाश्ता वाश्ता न करके जाओ और वापस घर आके कुर्बानी करो और फिर उसमें से खाओ। आन सल्लम की यही सुन्नत थी, कलेजी भून के खा ली या उस वक्त खा ली चीज़ को जो जल्दी ताज़ा फौरी तैयार हो जाए। लेकिन अगर तुमने अगले ईद की कुर्बानी 3 दिन तक हो सकती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अगर तुमने दूसरे और तीसरे दिन करनी है तो भूखी तो नहीं रह सकती, उस वक्त तुम खा लो। लेकिन सुन्नत पूरा करने के लिए बेहतर है कि पहले ईद पढ़ लो। इसलिए ईद की नमाज, जो बड़ी ईद की नमाज जो है, कुर्बानी की ईद की नमाज, वो ज़रा जल्दी होनी चाहिए जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है, ताकि वो आके कुर्बानी करके उसको खा सकें, या वैसे नहीं भी खा के गए तो खा लें। लेकिन जो ईद उल फितर है उसमें नाश्ता वगैरह करके जाना चाहिए। हुजूर, ईद उल अज़हा की ईद उल अज़हा का क्या मतलब है? अज़हा का मतलब है कुर्बानी करना। अज़हा है कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी की ईद। इस कुर्बानी का ईद जो है ना, कुर्बानी का नाम है, इससे इसलिए रखा जाता है। हैं वैसे दुहा तो सुबह के वक्त को भी कहते हैं, हैं, और अज़हा कुर्बानी है। इनके सवाल है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में दोनों में से किसका अहमियत ज़्यादा है? ईद उल अज़हा की ज़्यादा है। उसको हम ईद उल फितर को हम छोटी ईद कहते हैं और ईद उल अज़हा को बड़ी ईद कहते हैं। और हज़रत इस्लाम की तहरीरों से भी यही लगता है कि ज़्यादा कुर्बानी वाली है और इसमें हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद ताज़ा होती है। ये बहुत बेहतर है, ईद बड़ी है, ज़्यादा काबिल एहतराम है। मेरा नाम है नेताल बशारत अहमद। मेरा पहला सवाल है, हुजूर, ईद की नमाज और रोज़ाना की नमाजों के तरीके में फ़र्क है, इसकी क्या हिकमत है? ईद की नमाज में तो तकबीरें होती हैं बहुत, और अजान कोई नहीं होती, और तकबीर तहरीमा भी कोई नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ईद की नमाज में अजान इसलिए नहीं कि बहुत दूर दूर से लोगों ने आना होता है, और अजान का सवाल ही नहीं क्योंकि उन तो पहुँच ही नहीं सकती अजान। और तकबीर ईद की नमाज के अंदर बहुत दफ़ा होती है, 8 दफ़ा खड़े शुरू में और 5 दफ़ा बाद में। बस ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, उसी से हमने ये सीखा है। मेरे पास लतीफ़ा भी है। हाँ, सुना है। एक फकीर ने बस्तों पर खड़े होकर एक आदमी से कहा, 1 रुपए का सवाल है पापा। इस शख्स ने कहा, टमाटर खा।
फकीर ने फिर कहा, 1 रुपए का सवाल है बाबा। फिर उसने क्या कहा, टमाटर का? इस शख्स ने फिर कहा, टमाटर का। फकीर ने एक पास खड़े हुए आदमी से कहा, क्या मैं इसे 1 रुपए मांगता हूँ और ये कहता है टमाटर का? इस आदमी ने कहा, दरअसल ये तोतला है, कहता है कमा कर खा। अच्छा, टमाटर का, हाँ, ठीक है जी। हजूर, बड़ी और छोटी ईद में डिफरेंस क्या है? हाँ, बड़ी ईद और छोटी ईद में बैठ जाओ। डिफरेंस क्या है? बैठ जाओ। बड़ी ईद और छोटी ईद में क्या फ़र्क है? हैं? तुमने मेरा ईद का खुतबा नहीं सुना था? सुना था? हैं? गए थे ईद पे? ईद पे गए थे ना, यहाँ नमाज पढ़ने। गया था। तो मैंने बताया था कि ईद, बड़ी और छोटी ईद में क्या फ़र्क है? हैं? बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद कहलाती है, हैं? इसको बड़ी ईद भी हमारे मुल्क में कहते हैं, कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, जो असल नाम है इसका, और वो ईद उल फितर कहलाती है। तो इसको छोटी ईद कहते हैं। वो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो रमज़ान की तुम कुर्बानी करते हो, उसकी खुशी में अल्लाह ने तुम्हें कहता है ईद मनाओ। और यहाँ उस कुर्बानी की खुशी में जिसके बाद मज़हब ने फैलना था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था, इस्लाम ने फैलना था, उस खुशी की ईद मनाई जाती है। हज़रत इस्माइल ने वो कुर्बानी की, हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी की, फिर उसी नस्ल में से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो इस खुशी में 2 ईदें, और ये देखो दोनों ईदें जो हैं वो तकरीबन साल के आखिर में मनाई जाती हैं, इसलिए कि सारा साल की कुर्बानियाँ जो है ना, तो ये भी याद रखो कि सारा साल की इबादतें और कुर्बानियाँ होनी चाहिए, उसके बाद फिर तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ना करो, सारा साल बैठे रहो, ना रोज़े रखो, ना नमाज़ें पढ़ो, ना कुर्बानियाँ करो और ईदें मनाओ। एक हिकमत ये भी है इसमें कि जो इबादतों की कुर्बानी है वो भी सारा साल हो और आखिर में जाके ईद उल फितर मनाओ, तकरीबन 2 महीने पहले ही होती है ना। और इसी तरह ये कुर्बानी जो जुमाती कुर्बानी है, इसमें भी सारा साल की कुर्बानियों के बाद आखिर में जाके रखा है।